Okay, let's see now. I have a point charge. एक मेरे पास point charge है Q. It can be positive or negative. So here's my point charge Q. So इस charge की वजह से, due to this charge, I want to find out electric field intensity at point T, which is at a distance R. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है मालूम. ऑलरेडी वी डिड दिस, बट वी हैव सेपरेटली one question regarding this. That's why I'm explaining again. Already I've covered this concept in electric field intensity. So due to that point, how will you do? You have to put here a unit positive charge. What you have to do? You have to put a unit positive charge जिसका magnitude रहता है. So for initial, I will take it as Q naught. Afterwards, I'll take Q naught as plus 1. Okay, so now electric field intensity at point P due to the point charge, this is my point charge Q. Okay, so it will be the force experienced by the unit positive charge will give you electric field at point P. For that purpose we have to find out the force between the point charge and a unit positive charge. So the force will be charge of point charge for whom you are finding the electric field there into Q naught divided by 4 pi epsilon naught R square. Okay, so this is the electric. Let this be equation 1 and equation 2. Now substitute equation 2 in 1, we get electric field intensity as Q naught divided by 4 pi epsilon naught R square, and in the denominator we have Q naught. So this Q naught will get cancelled out. So electric field intensity at a distance R due to this point charge Q is Q divided by 4 pi epsilon naught R square. It will have units Newton per coulomb. Its direction is along the direction of the force. So ये particle कौन से direction में force feel करेगा? ये direction में. So electric field का direction भी यही होगा. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर मैं ये डायरेक्शन को r क्या बोलूंगा, बिकॉज इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इज देयर. सो हियर पोजीशन वेक्टर r इज देयर, सो दैट्स हाउ आई कैन राइट इट एज r क्या. अलोंग द r क्या, द फोर्स, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल फोर्स द फोर्स. तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होगी और उसका डायरेक्शन होगा अलोंग r क्या. सपोज इंस्टेड ऑफ अ सिंगल चार्ज, अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पर और भी. तो लेट दिस बी Q1, फिर यहाँ Q2 है, फिर यहाँ Q3, Q4 है, Q5 है. लेट Qn नंबर ऑफ चार्जेस है. तो ये ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इट विल बी द सम ऑफ, इट विल बी तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be equal to the sum of all the electric fields due to individual charges. अगर आपके पास ऐसा है तो the net electric field is equal to electric field due to Q1 4 pi epsilon naught R1 square. Q1 R distance, R1 distance है, फिर again you have to Q2 4 pi epsilon naught R2 square plus like this, so on you have to write. So electric field intensity due to single charge just Q है, but many charges है, तो जितने charges है उन सारों का electric field you have to add, and that electric field will give you the net electric field at point P. सबको ऐड कर देना. will be E1 plus E2 plus E3 so on. Anyway, so this is called electric field intensity due to a point charge. Now we will see what is electric flux. What is called electric flux? क्या चीज है? Electric flux. What is electric flux? So before electric flux, इस concept को आपको समझाने के लिए, before that I will explain you a daily life example. Suppose I have some, इस डायरेक्शन में I have some water flowing. एक रिवर समझो या कुछ, लेट दिस बी रिवर, और इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा कुछ वेलोसिटी v से, कुछ वेलोसिटी v से. तो मैं क्या कह रहा,
I have a square like this. इस स्क्वायर के अंदर से कितना अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा मुझे मालूम करना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस स्क्वायर के अंदर से जा रहा मुझे मालूम करना है. तो मैं क्या करा, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है और ये मेरा स्क्वायर, तो इन दोनों को क्या करा इनिशियली 0 डिग्री एंगल पे रख दिया. तो ये जो एरिया रहता है, जहां भी आपको एरिया मिला, एरिया का डायरेक्शन क्या रहता है, एक यूनिट नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो रहता है डायरेक्शन ऑफ द एरिया. सपोज ये बोर्ड है, ये बोर्ड का एरिया है कुछ, अब ये एरिया का डायरेक्शन क्या बोले तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये जो सरफेस है 90 डिग्री बना रहा है ये, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया. तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या रहेगा, इसका एरिया रहेगा दिस. तो इसका एरिया को मैं बोल रहा हूँ n क्या, और इसका एरिया है a. तो डायरेक्शन ऑफ वाटर क्या है, डायरेक्शन का वाटर का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वो भी यही डायरेक्शन में है. ओके, दोनों का सेम डायरेक्शन. तो दोनों का एंगल कितना होगा, एंगल हियर विल बी 0. तो अमाउंट ऑफ वाटर flowing through the square will be, I am calling it as amount of water flowing through the square, I am calling it as phi. So phi will be equal to the dot product of area with velocity. So यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ओपन करूंगा तो आई गेट a v cos थीटा. तो थीटा कितना है 0, तो a v. तो डायरेक्ट मुझे टोटल वाटर फ्लोइंग थ्रू द स्क्वायर विल बी a into v. अगर सपोज मैं इस स्क्वायर को फ्लैट लग दूंगा, मतलब ऐसा करके रखा like this. So now I want to find out the amount of water flowing through the square. So अपना कॉमन सेंस क्या होता है कि अगर वाटर ये डायरेक्शन में जा रहा तो कितना वो स्क्वायर के अंदर से तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर का डायरेक्शन ये है. तो आपने ये मालूम होता है कि इसके अंदर से ऐसे में कुछ भी वाटर फ्लो नहीं होगा. द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द स्क्वायर विल बी 0. वी नो दैट. बट मैथमेटिकल जो इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट है, जो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है डॉट प्रोडक्ट की, वो भी यही प्रूव करेगी कि द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग थ्रू दिस स्क्वायर will be 0. How? We'll see now. So now you have to see the direction of the square. It will be this n cap. उसके perpendicular है तो उसका direction. Now the direction of the water flow ये v. तो दोनों का एंगल कितना होगा 90 डिग्री. So now amount of water flowing through the square will be इसका area into dot product with velocity. Area dot product with velocity. तो दोनों का ओपन करो v into a cos थीटा. थीटा कितना है यहाँ पर v into a cos थीटा कितना है 90 डिग्री. So cos 90 will be 0. That's why the amount of flux going through the square will be 0. So this is the importance of dot product. हम फिजिक्स में बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं. तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस, ऐसे कोई सिचुएशन अगर हम डील कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे पेजेस लग जाएंगे. सो दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स को एक्सप्लेन बहुत सीधी सादी सिंपल वर्ड्स में. एक इक्वेशन में कैसे बहुत सारे सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी इक्वेशन में हम बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं. दिस इज हाउ डॉट प्रोडक्ट वर्क्स. तो यही कॉन्सेप्ट अगर आपको ये आ गया डॉट प्रोडक्ट कैसे, यू कैन आप ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपको मालूम है. सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जिस तरीके से यहाँ पर वाटर लिए थे यहाँ पर हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड going in this direction like this. तो यहाँ पर ये वाटर था, in this case we have electric field. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक कर्चिफ जैसा कुछ रखा, कर्चिफ या कुछ तो भी ऐसा जिसका ऑर्बिटरी शेप है. तो इस सरफेस की वजह से इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है मुझे मालूम करना है. कितना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू पास हो रही, वो अमाउंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस विल गिव मी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से. तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कर्चिफ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए मैं पहले एक छोटा सा यूनिट एरिया लूंगा. दिस बी माय यूनिट एरिया. तो ये एरिया का कुछ एक नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा. तो दिस इज द direction of that particular area. Okay, now direction of electric field at this point is suppose this. So they are making some angle theta with it. So ये जो एरिया में जो छोटा एरिया कंसीडर करा, इसको मैं बोलूंगा ds बार. so ds और ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टोटल फ्लक्स, नॉट टोटल फ्लक्स, द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स मुझे कर्चिफ का फाई आएगा. तो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स जो मुझे आएगा दैट विल बी d phi. तो ये जो d phi है ये है ड्यू टू द स्मॉल एरिया डॉट प्रोडक्ट विद E dot
ds E डॉट ds, जिस तरीके से हम वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे एरिया के साथ, तो यहाँ पर एरिया कितना है ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पास है E, so that's how ये, so now this will give me E ds cos theta, where theta is 9. Now if you want to find out the total flux through this curvature, it will be, you have to integrate. छोटे छोटे बॉक्सेस बहुत सारे हैं, सपोज ऐसे छोटे छोटे जो एरियाज में कंसीडर करा, इन सारे छोटे छोटे एरियाज को अगर मुझे मिला देना है, इन सारे एरियाज को मुझे मिलाना है, तो व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू इंटीग्रेट अगर मैं कर दूंगा तो आई गेट द टोटल एरिया, so integral d5 will give me the net flux, पूरा फ्लक्स लगे, that will be 5 will be equal to integral E bar dot ds bar, so the flux is defined as integral E bar dot ds bar, so it's a dot product between electric field and the area. So इसका कुछ example we'll see now, we'll see few example of this. Now suppose I have the electric field going in this direction like this, यहाँ पर मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ, the square is something like this, तो स्क्वायर का नॉर्मल है थोड़ा n cap and this is the electric field. So इस स्क्वायर के अंदर से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे, the number of lines crossing the square, crossing this area will give me flux through this area, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे तो ज्यादा फ्लक्स आएगा, और this flux is a scalar quantity, it will just give you the number of lines coming out from the area, वो फ्लक्स का कुछ डायरेक्शन नहीं रहेगा, it will just give you the amount, कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आप जो पर्टिकुलर सरफेस पिक करें उस सरफेस के अंदर से कितने लाइंस पास हो रहे हैं वही देगा बस. So ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाए now, the n and here theta is how much, 0 degrees. So now we will find out the flux through this area, ये क्या है मेरा टोटल एरिया a है, so phi is equals to a bar dot, यहाँ इंटीग्रल इसलिए कह रहा है क्योंकि ये अनइवन ऑर्बिटरी शेप है, सपोज ये एक स्क्वायर रहता, परफेक्ट स्क्वायर रहता, तो परफेक्ट स्क्वायर का मैं एक एरिया a ले सकता हूं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन में E is a constant, we can take it outside ds, so इंटीग्रल E ds, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर रहता तो उसका एरिया सपोज a आ, यहाँ एक परफेक्ट शेप है, एक स्क्वायर देता है तो उसका एरिया मैं आई एम कॉलिंग इट एज a bar dot E I have to do, so a bar dot E का कितना फ्लक्स मुझे आ रहा है, I have to open this dot product, it will be cos 0 degree, 0 मतलब 1, so the total flux is this, so when theta is 0 degree the flux will be maximum, ये क्या है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स है. सपोज एक दूसरा सिचुएशन ले लो, इसमें मान लो कि जो एरिया है वो द एरिया इज लाइक दिस, जो अपना स्क्वायर है इज लाइक दिस, सो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन n cap, so this is the electric field. So when you make it flat, कितने नंबर ऑफ लाइंस इस स्क्वायर के थ्रू पास होंगे, nothing will pass because all the lines are going in this direction, और आपका स्क्वायर ऐसा है, तो ऐसे में कोई लाइंस नहीं पास होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, so no electric field is there in this direction, so the flux through this area A will be 0 here, flux will be how much, 0, but let's see the dot product क्या आंसर देता है इसका, how much is the angle, 90 degree, A bar dot E, AE cos 90 is 0, that's why the flux is 0. So flux will be 0 when the angle is 90 degree. If theta is 90 degree, the flux is minimum इतना आ सकता, maximum इतना आ सकता. Suppose if I have the unit area, the surface is making angle something like this, n cap is here, so it is making 60 degree, suppose 60 degree with electric field, how much, 60 degree. So now because you have bend it, कुछ एंगल से उसको बेंड कर दिए, तो पहले देखो here it was straight रखेंगे तो ज्यादा लाइंस आएंगे, हल्का सा अगर if you bend तो जो ऊपर के थोड़े मिस हो जाएंगे और नीचे के थोड़े मिस होंगे, जो इसके स्क्वायर के अंदर से जो लाइंस पास हो रहे थे वो it will miss. Okay, so now here the flux will be AE cos 60 degree. Cos 60 degree is how much, 1/2, so it will be flux will be half. अगर आप इस एरिया को 60 डिग्री बेंड कर दोगे
so it will give you half of the flux. Straight रखोगे तो पूरे लाइंस पास होंगे, बट हल्का सा बेंड करोगे तो ऊपर के कुछ लाइंस मिस हो जाएंगे, फ्लक्स ये एरी के अंदर से पास नहीं होगा, नीचे की कुछ लाइंस मिस हो जाएंगे जो ये एरी के अंदर से पास नहीं होंगे. So that's why the flux will decrease, number of lines passing through the area will decrease. So this is all about electric flux. Okay, so that's it for today. Thank you so much for watching.